Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss about the conformational isomers. In the previous lecture we have been discussed regarding the different types of stereochemistry. Right now we will discuss and try to understand about the role of conformational isomers. What are conformational isomers? What is the role of conformational isomers in order to develop or generate different types of isomers? As conformational isomers can are very you can say that they can be known as different poses or shapes uh, on rotation of molecule in 3D space. So, if we talk about the definition, conformation analysis or conformation analysis that can therefore be regarded as analysis or poses or shapes that molecules may adopt as a result of rotation of change of uh, a bond or rotation of the carbon bond or the atoms which is attached with the carbon atom uh, or the rotation of different atoms or group of atom on a single carbon bond. It is just like that there are two carbon atoms which are attached with each other. Every carbon has a different conformation in 3D space. They have attachment with respect to different groups. If it is H, all the H will tend to rotate on the axis of carbon, resulting into generating number of poles, number of shapes. So the rotation of each carbon or the rotation of groups or around each carbon or flipping of the groups which attach with the carbon atom on a single attachment or sigma bond hybridization, so that result into the generation of different poses. So the conformational analysis is the study of how molecules they will show the reactivity with the receptor, and they have certain amount of energy. आसान लफ्ज़ों में इसमें कि कन्फर्मेशन एनालिसिस का रोल क्या है स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है। रिसेप्टर और ड्रग, बॉडी के अंदर हर ड्रग का एक रिसेप्टर मौजूद है. In order to produce a therapeutic response or the biological activity, the drug has to bind with the receptor. So when the drug reaches towards the receptor site, they will make some interaction. So in order to make interaction, the shape of the receptor and the shape of the drug both, they have to uh, get changed in order to make maximum possible interaction in order to produce the pharmacological response. So conformation basically means is to change the shape or orientation of the atoms which is attached to the carbon or the groups which is present in the structure of a drug. So in simple words, conformation are represented as a three-dimensional arrangement or 3D arrangement of atoms in a molecule that results in changing uh, or developing or producing different shapes or poses from rotating about a single bond. Molecules, they are continuously in a state of rotation in order to produce different possible conformation. When the molecules tend to rotate at angle of 0 degree, 10 degrees, 30 degree, 40 degree, 60 degree, they will produce different types of conformations. So isomers that differ as a result of sigma bond rotation of carbon-carbon bond in alkanes, they are considered as a conformational types of isomers. So as you know that the shape of the molecule is not static, they must have certain amount of energy, or they will require certain amount. The groups which are attached with the within the structure of a drug, they try to push each other in order to attain the stability. So in this phenomenon of pushing the molecules on the basis of different torsional strain, angular strain, steric strain, they will result into generating in the different shape or poses or conformations to the molecule. इसकी सबसे आसान एग्जांपल अगर हम आप समझना चाहें, you are looking when you are looking into the mirror every day, you will see that when you are rotating the head, when you are looking at the mirror, you will see there will be different poses. There are there must be different poses. यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप अपने कैमरा से
मोबाइल फ़ोन से तस्वीर जब खींचते हैं, यू विल ट्राई टू चेंज द फिजिक ऑफ योर बॉडी इन ऑर्डर टू गेट डिफरेंट पोजेस। यानी कि अगर आप देखें, ह्यूमन बॉडी के अंदर मल्टीपल कन्फॉर्मेंस जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन है आपके पास, ठीक है। इस तरीके से अगर आप राइट हैंड मूव अप करेंगे एट अ डिफरेंट एंगल, तो आपके पास ये एक पोज बनेगा, ये एक और पोज बनेगा। तो इसी तरीके से आपके पास ये सारे के सारे जो हैं मल्टीपल कन्फॉर्मर्स हैं, ठीक है। तो योर द रोटेशन ऑफ योर द हेड on your neck will result into generating different poses. The rotation of your hands on its axis, the rotation of your hands on the axis of the shoulder will result in different shape generation. ऐसा ही है कि आपको किसी से, अगर मुझे आपसे हाथ मिलाना है, तो आप अगर बैठे हुए हो, तो बेस्ट पॉसिबल कन्फर्मर क्या है? अगर मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ और आप बैठे हुए हैं, तो दोनों को एक दूसरे से स्टेबल स्टेट में मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए एक 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 इक्विवेलेंट पोजीशन पे आना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी कि आप बैठे हो, मैं खड़ा हूँ, हाथ मिला सकते हैं, खड़े होके भी दोनों हाथ मिला सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि इस तरह से आपके पास मल्टीपल कन्फर्मर्स जनरेट हो सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, व्हेन यू आर वॉकिंग, योर बॉडी विल, all the parts of your body are in a state of motion or movement. They will generate number of poses, numerous poses or several poses. Okay. इसी तरीके से अगर आप देखें, आपने हाथ की मिसाल ले लें, तो नेचर ने आपको हर चीज़ समझाई और बताई है। आपने हाथ की जो बोन्स हैं फिंगर्स की, तो अगर आप अपने फिंगर्स की मूवमेंट देखें, तो यू हैव 5 फिंगर्स, 10 फिंगर्स, एवरी फिंगर हैज़ मल्टीपल कन्फॉर्मर्स, every finger has a different distance or the shape. So if you close your 2 fingers, there will be another conformer. If you close 3 fingers, there will be another conformer. If you close all the fingers just like a punch, then there will be another conformer. So the movement of all the bones which are interconnected, or the anatomy of your body, or every bones in the body will, the movement of every bones which is present in our body, they will result, it will result into number of poses. आपके पास नंबर ऑफ पोजेस आएंगे, पोजेस को हम कन्फॉर्मेशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट जॉगिंग, अगर आप रेस में देखते हैं, रेस में एथलीट्स जो है जब रेसिंग स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल पोजीशन जो उनकी होती है वो इस तरह से होती है। जैसे ही आपके पास कहते हैं स्टार्ट की जाती है रेस, तो आपके पास इस पोजीशन से आप इस पोजीशन के अंदर आते हैं। और आप देखें, यहाँ पर आपका जो राइट लेग है आगे और लेफ्ट लेग पीछे है। यहाँ पर आपका राइट लेग पीछे है और ये लेफ्ट लेग आगे आपके पास। सो जस्ट लाइक दैट, every part or every movement of your body around axis will result in generating number of poses or number of conformations. ये इसलिए पॉसिबल है कि आपके पास, अगर आप देखो, आपकी रिस्ट्रिक्शन भी है। अगर आप इसकी मिसाल समझेंगे, रिस्ट्रिक्शन आपकी हेड के अंदर है। आपका हेड जो है वो 180 डिग्री के ऊपर रोटेट कर सकता है। यू कांट रोटेट योर हेड एंड कांट सी योर हेड, सी द थिंग्स ऑन योर बैक साइड। आप अपने सर को पीछे घुमा के नहीं दे सकते, इसके लिए आपको पूरी बॉडी को मूव करना पड़ेगा। आपकी बॉडी जो है वो फ्रंटल व्यू के ऊपर 180 डिग्री को कवर कर सकती है। जो आपका फेस है, ये 180 डिग्री के ऊपर आपका जो है वो व्यू दे सकता है। यू कांट सी, ठीक है, द बैक थिंग्स। So this is the conformational analysis or conformations or isomers. इसी तरीके से आप इसकी मिसाल इस तरह से भी ले सकते हैं। When you are offering a prayer, you have multiple poses, multiple conformations: standing conformer, bowing conformer, prostrating conformer, and the sitting conformer. So every pose of your body when you are offering to the Allah, it will result into number of conformations. ये आपकी एक conformer है, ये आपका जो है एक कन्फर्मर कहलाएगा, एक कन्फर्मर, ठीक है। ये फर्स्ट कन्फर्मर है, ये सेकंड कन्फर्मर है, थर्ड कन्फर्मर है, फोर्थ कन्फर्मर है। फिर दोबारा आप जब खड़े होगे तो आपके पास एक और कन्फर्मर बनेगा। तो अल्लाह ताला ने आपको सारी चीज़ें अभी की शक्ल में और मुख्तलिफ आपके आसपास में चीज़ें क्रिएट करके आपको नेचर की शक्ल में चीज़ें समझाई है। तो केमिस्ट्री अगर आप इस तरह से समझना चाहो तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी।
In nature there are different things available, so everything they have a different shape, they have different poses. So in nature अगर आप इसको देखो तो when you are sitting on a plane, when you are lying on a couch, when you are sitting on a chair, when you are standing in front of a class, so which result into number of conformations, conformers or conformations कहलाती हैं. अब इसको हम एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं. देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द एंगल. तो the molecules in the 3D space, they are tend to rotate on its axis when they are in a sigma sigma bonding form. So there must be an angular angle at which the atoms which are interconnected, they will try to push each other, they will try to force each other, they will try to flip on the axis. So which result into different conformations. From eclipse conformation भी कहते हैं, staggered conformations भी कहते हैं, gauge conformation भी कहते हैं, anti conformations भी कहते हैं. That results on the rotation of the or that results on flipping or flipping of the atoms on its axis at a different angle. इसकी एग्जांपल ऐसे है कि ये आपके पास इथेन का मॉलिक्यूल है, देयर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, और आप देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसके दोनों, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, पीछे वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं. ठीक है, ये कार्बन अगर आप इसको देखो सेंटर से देखो, ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और ये भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. all hydrogens, all the hydrogens H atoms are facing each other. When they are trying to face each other, they are at a 0 degree angle. So this 0 degree angle will be considered as eclipsed. ऐसा ही है eclipse हम किसको कहते हैं, जैसे सूरज के आगे चांद का आ जाना, सूरज के आगे मून का यानी कि चांद का आ जाना. So just like that, ये दोनों एक दूसरे के सामने अगर आ जाए, दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए तो क्या होगा, ये आपके पास क्या कहलाएगा, सोलर इक्लिप्स कहलाएगा. इसी को देखते हुए आपके पास कंफर्मेशन बनी है इक्लिप्स. ये दो चीज़ों का आमने सामने, दो सेम थिंग्स का आमने सामने आ जाना, एक दूसरे के आगे पीछे आ जाना, दैट रिजल्ट्स इन इक्लिप्स कंफर्मेशन. और दिस इक्लिप्स कंफर्मेशन आर एट एन एंगल ऑफ 0 degree. ठीक है. While another conformation is that when this hydrogen will try to move, ये सेम एग्जांपल आपके पास की है, ये है कार्बन के जो हाइड्रोजन है, अगर ये 60 डिग्री के ऊपर 60 डिग्री के ऊपर फ्लिप करता है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द हाइड्रोजन विच इज़ फेसिंग टू द हाइड्रोजन लाइक दैट, ये जो हाइड्रोजन एक दूसरे को फेस कर रहे थे, इसके फ्लिप होने के नतीजे में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के से दूर चले गए. ठीक है, बोथ हाइड्रोजन या ऑल द हाइड्रोजन्स, all H atoms are moving away at an angle of 60 degree. ओके, तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है, जिसकी मदद से आप ये बता सकते हैं देयर मस्ट बी अ फिनोमेना ऑफ फ्लिपिंग ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द एक्सिस दैट रिजल्ट्स इन जनरेटिंग नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस. सो नंबर 1 स्ट्रेन इज द एंगल, और एंगुलर स्ट्रेन भी कहते हैं, इसको एंगल स्ट्रेन भी कहते हैं और एंगुलर स्ट्रेन भी कहते हैं. या आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप डिफरेंट क्लासेस पढ़ेंगे, वहाँ पर ही एंगुलर स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी. There must be different types of strain in the structure of the drug that result into generating number of conformations. That conformations are responsible for the pharmacological response on the basis of interaction of the drug with the receptor at a specific conformer, at a specific energy level, at a specific shape. So angular strain means the expansion and compression of bond angles away from most stable. एंगुलर स्ट्रेन मीन्स क्या है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन होना किसी भी रिंग के अंदर. जैसे लाइक रिंग के अंदर अगर आपके पास ये रिंग इस तरह से बना हुआ है 2D शेप के अंदर, तो 3D शेप के अंदर ये रिंग ऐसे भी बना हो सकता है. ठीक है, सो देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ बॉन्ड. अगर आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से है
और अगर आप इसके एंगल को एक्सपेंड हो या कंप्रेस हो, तो इसका अगर एक्सपेंड हुआ तो इसका बॉन्डिंग ऐसे भी हो सकती है, कंप्रेस हुआ तो इसकी बॉन्डिंग ऐसे भी हो सकती है. Expansion or compression of the bond angles away from most stable, they result into genetic stable conformers. While another torsional strain is the torsional strain. Torsional strain is the eclipsing of bonds on the neighboring atoms. यानी कि जस्ट लाइक इथेन की एग्जांपल हमने पीछे ली कि दोनों दो एटम्स का एक दूसरे के आमने सामने आ जाना है. जैसे लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पीछे ही एक हाइड्रोजन एटम आ जाए, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे आ जाएं, they will try to force, they will force each other, they will force each other. ठीक है, they will tell they will tell they will try to move or push the neighboring atoms. Okay, while the another strain is the steric strain, which results into the uh, generating a repulsive force to push the molecule on in the 3D space. That repulsive interactions between the non-bonded atoms in close proximity means steric strain means just like अगर आपके पास स्ट्रक्चर में कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है CH3 और इसके पीछे भी एक CH3 ग्रुप है, if they are facing towards each other, they will try to force each other, resulting into the uh, uh, different strain in terms of angle, in terms of energy. Ring strain is basically the combination of angular strain and the torsional strain. Now let's talk about the eclipse conformation. As we discussed that there are different types of conformation as a result of movement of the molecules or the flipping of the atoms on this axis. So eclipse conformation is indicated or represented, or it comes from the name of solar eclipse. So the conformation about a carbon-carbon single bond in which atoms or group of atoms on one carbon are as close possible. They are very close to each other. The atoms or the group of atoms are very close to each other on the same carbon or same on the atoms through which they are interconnected. So if you take the example of ethane, there is chemistry at which there is an angle at which the hydrogen are facing with each other. अगर हम देखें, हमने ये कन्फर्मेशन जो हमने कहते हैं इसको 2D और 3D रिप्रेजेंटेशन का हमने इसको पढ़ा था कि आपके पास मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 शेप्स होते हैं. एक आपके पास फिशर प्रोजेक्शन होता है, फिर न्यूमैन प्रोजेक्शन है, आपके पास सॉहर्स प्रोजेक्शन है. ये आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसमें ये फ्रंट कार्बन है और ये सर्कल वाला है बैक कार्बन है. ठीक है, ये ग्रीन कलर से जो हाइड्रोजन है सामने की तरफ है, ये फ्रंट की तरफ है, और एच में जो पर्पल कलर में वो बैक की तरफ है. और आप ये देखें इस न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर, देखें इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, carbon both are facing on the axis. Okay, their hydrogen are facing towards each other. All the hydrogens of both the carbon are interfacing towards each other. Green are facing to the purple, green are facing to the purple, green are facing to the purple. The frontal hydrogen are facing to the back hydrogen. They are on the same plane, on the same axis, at a same angle. एंगल किसके दरमियान है? आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के एंगल की बात कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की एंगल की बात कर रहे हैं. तो दे आर एट अ high amount of energy, 4 kilojoules per mole. Every hydrogen atoms will be treated separately. All the hydrogen atoms which are interconnected on the molecule of ethane, they will be at a molecule of they will require 4 kilojoules amount of energy to be in this state. तो यानी कि इसको इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इस स्टेट में रहने के लिए, इक्लिप्स स्टेट में रहने के लिए. इसको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. It is difficult for the molecule in the structure to have high amount of energy to make a stable conformer. ये conformer और stable conformer क्या होता है मैं भी आपको आगे बताऊंगा. अभी ये समझ लें कि इक्लिप्स कन्फर्म में ये है कि सिंगल कार्बन बॉन्ड के ऊपर जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एटम्स अटैच हैं या ग्रुप्स ऑफ एटम अटैच हैं टू द एडजेसेंट कार्बन एटम, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, आमने सामने होंगे दूसरे के एट अ 0 डिग्री एंगल. ठीक है, ये ऐसा ही यहाँ बनाया हुआ है. ग्रीन हाइड्रोजन है आपके पास और ये रेड आपके पास हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, ये कार्बन है, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, तो अगर ये सामने एक दूसरे के हैं तो ये आपके पास एक कन्फर्मेशन कहलाएगी इक्लिप्स कन्फर्मेशन.
अगर इसको 60 डिग्री पे रोटेट करें, ठीक है, फ्लिप करें, इसको फ्लिप किया जाए, इसको फ्लिप किया गया 60 डिग्री के ऊपर, आपके पास कुछ इस तरह से इसकी कंफर्मेशन बनेगी कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के से दूर हो गए, ठीक है। ये जो आगे पीछे हाइड्रोजन थे, ग्रीन और रेड या ग्रीन और पर्पल, ये दूसरे से दूर हो गए at an angle of 60 degree. So this will result into another conformation, that is staggered conformation. Rotating the carbon on its axis or flipping the carbon on the axis will result on the axis at an angle of 60 degree will result into another conformation, that is staggered conformation. सूरज ग्रहण होता है तो उसमें ये नहीं कि मुस्तकिल आपके पास पूरा हर वक्त मतलब सालों तक सूरज ग्रहण है. The sun will close in the proximity to the the moon is close towards the proximity or in front of the moon, and the eclipse will be for a certain period of time, and after a certain period of time the moon will pass the sun, and they will on its own axis. So it is not visible to for both the stars to be in the same state, so they will require high amount of energy to be in that state. Just like that, this phenomena will apply on the molecule, in the structure of the molecule. ये आसान नहीं कि एक स्टेट के अंदर आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, हाई एनर्जी चाहिए होती है टू बी इन दिस स्टेट. इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि अगर आप खड़े हैं और तीन पोजीशन आपके पास, अगर मैं इसको पीछे आपको समझाऊं पिक्चर के अंदर, इस पोजीशन का आप समझ लें कि आपके पास ये चार कन्फर्मेशन है, ठीक है। और ये चार कन्फर्मेशन की अगर बात करें, इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी है आपकी बॉडी की? स्टैंडिंग कन्फर्मेशन है या बोइंग कन्फर्मेशन है या क्रॉस सेटिंग या सिटिंग है? सबसे अच्छी आपके पास स्टेबल कन्फर्मेशन जो है आपके पास, स्टेबल कन्फर्मेशन जो है आपके पास, वो आपके पास सिटिंग कन्फर्मेशन है. क्यों? इसमें आपकी एनर्जी जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो रही है, कम से कम एनर्जी चाहिए आपको इस स्टेट में रहने के लिए, और ज़्यादा देर तक आप इस स्टेट के अंदर बैठे रह सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसा ही नहीं कि अगर कम से कम एनर्जी चाहिए इस कन्फर्मर को जनरेट करने के लिए, यानी कि आपको खड़ी पोजीशन में यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आपके पास हाई एनर्जी चाहिए, इस स्टेट में रहने के लिए आपके पास हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है. हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी इन द स्टेट इन द स्टैंडिंग पोजीशन, वाइल इन कंपैरिजन इसमें आपके पास लो है, इसमें आपके पास लोअर है, इसमें आपके पास लोएस्ट एनर्जी है, ठीक है। तो ये सबसे स्टेबल होगा आपके पास कन्फर्मर, ठीक है। इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के अंदर भी आपके पास जो एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड होते हैं, they will try to force each other, they will try to bend each other, they will try to push each other at a certain angle. This type of movement or pushing or forcing of the atoms or group of atoms in the structure of a molecule will result in generating the different shapes और डिफरेंट कन्फर्मर्स, जिसमें आपके पास स्टेबल कन्फर्मर्स भी हैं, आपके पास लेस स्टेबल कन्फर्मर्स भी हैं, आपके पास अनस्टेबल कन्फर्मर्स भी हैं. तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट कन्फर्मर्स या शेप्स बनते हैं, डिफरेंट पोजेस बनते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त स्टेबल स्टेट के अंदर है, मॉलिक्यूल्स के अंदर भी ऐसे होता है कि वो स्टेबिलिटी अचीव कर ली, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी अचीव करने के बाद दोबारा रोटेट कर सकते हैं, हाई एनर्जी पे जा सकते हैं, फिर हाई एनर्जी के अंदर हर वक्त नहीं रह सकते, फिर सर्टेन पीरियड के बाद एंगुलर टॉर्जन स्ट्रेन की मदद से वो पुश और पुल करेंगे, फिर वो स्टेबल कन्फर्मर की तरफ जाएंगे. तो दिस फिनोमेना विल कंटिन्यू. इस कंफर्मेशन की बात करी थी, अगर हम देखें तो न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन में हमने ये कहा, ये आपके पास सॉहर्स प्रोजेक्शन है, ये आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ठीक है। और ये आपके पास 2D प्रोजेक्शन है, ठीक है। इसको हम वेज और डैश लाइन्स भी कहते हैं, वेज सॉलिड फ्रंटल व्यू और डैश लाइन मीन्स बैक व्यू. हम सॉहर्स प्रोजेक्शन देखें तो सॉहर्स प्रोजेक्शन के अंदर आप देखो, यहाँ से अगर हम इसको देखें, यहाँ से अगर हम देखें इसको, इस पॉइंट से अगर हम देखें तो ये आपके पास एक कार्बन है, ये आपके पास कार्बन है, ठीक है। ये आपस में सिंगल बॉन्ड की मदद से कनेक्टेड है. इसके ऊपर हाइड्रोजन मौजूद है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को फेस कर रहा है, पीछे वाला हाइड्रोजन नीचे की तरफ से पीछे वाले हाइड्रोजन को फेस कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसको फेस कर रहा है. ऑल द हाइड्रोजन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम्स, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर फेसिंग पैरेलल, दे आर फेसिंग पैरेलल. This requires high energy, resulting into flipping at an angle. थीटा इसको हम कह रहे हैं, ठीक है. Resulting into conformers.
कन्फर्मर्स आपके पास बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप न्यूमन प्रोजेक्शन के अंदर देखें तो न्यूमन एक अनदर प्रोजेक्शन है 2D स्टेप को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें भी आपके पास जो यही शेप है इसका न्यूमन प्रोजेक्शन बनाया गया है, जिसमें आपके पास ये दोनों हाइड्रोजन को आमने सामने दिखाया गया है, एक दूसरे के पीछे पीछे आगे पीछे दिखाया गया है। इससे किसके दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है। दिस इज द कन्फर्मेशन एट अ 0 डिग्री, ये आपके पास 0 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। इसी तरीके से स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हमने कहा एट एन एंगल, एट अ सर्टेन एंगल देयर इज अनदर कन्फर्मेशन। अ कन्फर्मेशन, staggered confirmation means a confirmation about a carbon-carbon single bond in which atoms or groups of atoms on carbon are far apart. They are far as possible from each other. ठीक है, ये ऐसा ही कि हाइड्रोजन जो एक दूसरे को फेस कर रहे थे एक दूसरे से दूर हो जाएं at a distance, they will not try to face each other, they will not try to push each other, ठीक है। So this will be possible at an angle of at a certain angle. So at a certain angle or at a certain theta degree or at an angle of 60 degree, if the molecule is flipping, अगर इस कार्बन को फ्लिप किया गया या मैं इसको फ्लिप कर दूं, कोई सी एक कार्बन को इसके एक्सिस फ्लिप कर दूं, तो जिसके नतीजे में क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है मूव करना शुरू कर जाएगा, ये हाइड्रोजन इस तरह मूव करना शुरू कर जाएगा। दिस रिजल्ट इनटू जनरेटिंग अनदर कन्फॉर्मर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। अगर इसका 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन देखें तो 100 हर्ट्ज से प्रेजेंटेशन इसकी इस तरह से और न्यूमन प्रोजेक्शन इसकी इस तरह से। इसको मैं आपको इस शेप में दिखा देता हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। यही सेम इथेन मॉलिक्यूल आपके पास है, ये सॉलिड डैश लाइन्स हैं जिसमें आपके पास 2D व्यू है, 2D व्यू है, ये आपके पास ये भी 2D व्यू है पर 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन लाती है आपके पास। ये 3D व्यू है आपके पास, एक 2D टू 3D व्यू है, इसमें आप आगे पीछे के एटम्स को देख सकते हैं, इसको हम न्यूमन प्रोजेक्शन कहते हैं। 100 हर्ट्ज में अगर हम देखें इसी मॉलिक्यूल को हम देखें तो आपके पास कुछ इस तरह से बनना है। आप देखें एट अ सर्टेन एंगल, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन फार अवे, ये हाइड्रोजन इससे फार अवे, ये हाइड्रोजन फार अवे। All the hydrogens are far away. If the molecule is flipped at an angle of 60 degree, 60 डिग्री के ऊपर आप जो फ्लिप करोगे, that result into the torsional strain, that is because of the torsional strain, that the molecules which are facing towards each other, they will be at a risk of torsional strain resulting into flipping of the molecule, pushing of the molecule on the axis in order to generate a staggered conformation or another stable conformer, okay। नाउ स्टैगर्ड को हम एंटी कन्फर्मेशन भी कहते हैं। डिस्क्रिप्शन गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि दो ग्रुप्स विच आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट एटम्स, वो ग्रुप्स जो कि सेम ग्रुप्स हों और एडजेसेंट कार्बन एटम से एडजेसेंट एक एक सेम कार्बन के ऊपर अटैच्ड हों, यानी कि एक कार्बन पे अटैच है, एक कार्बन पे अटैच है, ठीक है। व्हेन देयर बॉन्ड्स आर एट एन एंगल ऑफ 180, the bonds are at an of 180 डिग्री, ए 180 डिग्री के ऊपर फ्लिप करे या 60 डिग्री के ऊपर 60 डिग्री के ऊपर फ्लिप करे तो रिजल्ट इनटू जनरेशन ऑफ स्टैगर्ड और एंटी, यानी कि इसके नतीजे में आपके पास क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जब दूसरे से दूर होंगे तो देयर विल बी नो टॉर्शनल स्ट्रेन टू पुश ईच अदर रिजल्टिंग इनटू लेस एनर्जी और less energy is required or to generate the conformer, and the conformer will be considered as a more or most stable conformer. While eclipse conformer is that when two substituents attached to the adjacent atoms, they are at 0 degree, they are on each other, okay, they are on at each other, so they are in a state of eclipse conformation, they are facing towards each other, they will try to push each other, they will require a high amount of energy to be in this state. While Gauss conformation is the description is two substituents attached to the adjacent atoms when their bonds are rotating at a 60 degree, ठीक है। एंड स्टैगर्ड के अंदर 180 डिग्री था आपके पास और 180 डिग्री, इक्लिप्स के अंदर 0 डिग्री और गॉश के अंदर आपके पास 60 डिग्री के ऊपर आपके पास रोटेशन है।
ये कंफर्मेशन आपके पास आपको कंपैरेटिव बताई गई है इसमें विद रिस्पेक्ट टू द प्रोस्पेक्टिव फार्मूलाज। तो ये हम पीछे स्लाइड के अंदर डिस्कस किया, वही सिमिलर स्लाइड इससे रिप्रेजेंट की जा रही है। ठीक है, अगर आप देखो मैं इसको 3D के अंदर आपको बताना चाहूँ तो 3D के अंदर कुछ मॉलिक्यूल इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। अगर कंफर्मेशन की जो हम अपने बात समझते आए हैं कर रहे हैं, तो कंफर्मेशन इन द मॉलिक्यूल मीन्स कि मॉलिक्यूल्स का किसी भी ग्रुप के ऊपर किसी भी एटम के ऊपर जो एटम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं, दे आर इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट, कंटिन्यूस मूवमेंट व्हेन दे आर इंटरकनेक्टेड एट विद द हेल्प ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड की मदद से हो। यहाँ पाई पाई अगर कंजुगेशन है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कंफर्मेशन की। ठीक है, एन इथेन मॉलिक्यूल विद इनफ एनर्जी टू फुल्ली रोटेट, यानी कि हमने इथेन की एग्जांपल हमने समझी अभी तक, और इथेन ही की एग्जांपल यहाँ बताई गई है। तो एक कार्बन इसका, ये कार्बन ये हाइड्रोजन इसकी एटम्स है। ठीक है, आप देखो इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो रोटेट कर रहे हैं, जब ये रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे, जिस जिस एंगल पे रोटेट करेंगे उस एंगल के ऊपर एक एक कन्फर्मर बनता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी यही बताया गया, इस कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोजन एटम जो है वो रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। पीछे वाले फिक्स हैं, फ्रंट वाले मूव कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे भी ये फिक्स हैं और ये रोटेट कर रहे हैं। ओके, अब with respect to the energy, potential energy diagram is basically representing the energy required to generate different stable conformers or different types of conformers, eclipse, staggered, anti-gauge conformation. There's a scale एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास जो है वो एंगल है 60, 120, 180, 240, 300 एंड 360, while एनर्जी आपके पास यहाँ पर हाई है, यहाँ पे आपके पास लो एनर्जी, ये आपके पास लेस स्टेबल होगा, यहाँ पे बस मोर स्टेबल होगा। ओके, अब इसका पूरा जो गैप देखिए, एनर्जी गैप देखिए, एनर्जी गैप आपके पास कितने हैं? 12 किलो जूल्स है और ये मूव करता है। ठीक है, दिस इज द हाई अमाउंट, ये हाई हाई स्लॉट आपके पास, यहाँ पे आपके पास ये हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपके पास ये जो नीचे की तरफ आपके पास कर्व होगा वो लो एनर्जी वाला होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन डायग्राम इज बेसिकली द एनर्जी प्रोडक्शन डायग्राम ऑफ द इथेन मॉलिक्यूल। टॉप वाली जितनी भी कन्फर्मेशन हैं हाई एनर्जी के ऊपर, उसको हम कह रहे हैं एक्लिप्स कन्फर्मेशन। ठीक है, और ये जो बीच में आपके पास 60 डिग्री के ऊपर आ रही हैं, आपके पास 60 ये आपके पास इस डिग्री के ऊपर ये आपके पास क्या आ रही हैं? स्टैगर्ड, स्टैगर्ड कहेंगे इसको, स्टैगर्ड को मैं एस से रिप्रेजेंट करूँगा, स्टैगर्ड, और इसको मैं एक्लिप्स से कह रहा हूँ, ई फॉर एक्लिप्स, एस फॉर स्टैगर्ड। ठीक है, अगर आप देखो तो 0 डिग्री के ऊपर यही इथेन का मॉलिक्यूल जो था, इसके दोनों कार्बन एक दूसरे के आगे पीछे थे, हाइड्रोजन एक दूसरे के आगे पीछे थे, तो दे आर एट अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एट एन डिग्री ऑफ 60 डिग्री ये हाइड्रोजन रोटेट हुआ, एक कार्बन रोटेट होगा, या पीछे वाला या फ्रंट वाला, दो में से कोई भी कार्बन या दोनों फ्लिप होंगे। तो दिस फ्लिपिंग इज बेस्ड ऑन द एंगुलर टॉर्जनल strain, so result into flipping of the molecule on its axis in 3D space in order to generate, in order to attain the stability, to develop stable conformer। तो इसके नतीजे में एनर्जी डिक्रीज हुई, हाइड्रोजन इससे दूर हो गया, ये हाइड्रोजन इससे दूर हो गया, ये हाइड्रोजन इससे दूर हो गया, या फार अवे फ्रॉम ईच अदर। इससे कि अगेन 160 डिग्री की और फ्लिपिंग हुई, तो फिर ये दूसरे के सामने आ गए। ठीक है, फिर ये इसकी एनर्जी बढ़ गई, यहाँ पे एनर्जी कम हो गई, फिर जब 60 पे दोबारा फ्लिप किया गया, फिर इसकी एनर्जी कन्फर्म हो गई, डिक्रीज हो गई, फिर आपके पास ये आपके क्या होगा, ये आपके पास स्टैगर्ड है, ये आपके पास एक्लिप्स है, ये 0 पे एक्लिप्स है, 60 पे स्टैगर्ड है, 120 पे एक्लिप्स है, 180 के ऊपर आपके पास स्टैगर्ड है, इस तरीके से एक्लिप्स है, और ये स्टैगर्ड है, यही आपके पास एक्लिप्स है। तो जब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू जनरेट अ स्टेबल कन्फर्मर, तो
the conformer will be considered as a clip conformer. Low energy required होगी in order to generate the more stable conformer. That conformer will be considered as a staggered conformer at an angle of 60-degree flip. इसी तरीके से आपके पास अगर मॉलिक्यूल्स देखें साइक्लिक फॉर्म के अंदर उनकी डिफरेंट कन्फर्मेशंस होते हैं। चेयर कन्फर्म है आपके पास, बोर्ड कन्फर्मेशन आपके पास। तो this basically explains that the cyclized form of the structure they will also tend to move or expand or constrict और expand या compress भी होते हैं। They will try to flip or change the shape। ये सिर्फ आपके पास स्ट्रेट चेन के अंदर ये अप्लाई नहीं होती कन्फर्मेशन, आपके पास साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर ये अप्लाई होती है, साइक्लिक नॉन कॉन्जुगेटेड। ओके, जहाँ अनसैचुरेशन नहीं होती, सैचुरेटेड एटम्स होते हैं अल्केन फैमिली के अंदर। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोअल्केन है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो देयर इन दिस type of molecule, the chemistry or the attachment or the 3D orientation of the molecule or the attachment of groups, they are also tend to push and pull each other, resulting into generating stable conformer। तो चेयर कन्फर्मर एक और कन्फर्मर है, और आपको देखो ये साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है। आपके पास एग्जांपल दी गई है साइक्लोहेक्सेन, ये इसका फॉर्मूला होता है C6H12 और ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। यहाँ CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, ये भी CH2, ये भी CH2। ओके, तो इसकी अगर हम साइक्लोहेक्सेन की हम चेयर कन्फर्मेशन बनाएं, इसकी दो किस्म की कन्फर्मेशन हो सकती है, एक चेयर कन्फर्मेशन है और एक आपके पास बोर्ड कन्फर्मेशन है। हम डिस्कस कर रहे हैं अभी चेयर कन्फर्मेशन। तो अगर हम इसकी चेयर कन्फर्मेशन बनाएं तो कुछ इस तरह से बनती है। ये आप कन्फर्मेशन आप पहले देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें पॉलीसेकेराइड चेन का कनेक्टिविटी होती है, उनकी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये चेयर कन्फर्मेशन का 3D मॉडल है, ये 3D मॉडल है, और ये आपके पास 2D मॉडल है, ठीक। तो अगर आप देखें जस्ट लाइक इसको चेयर कन्फर्मेशन क्यों कह रहे हैं, इसकी चेयर जो कन्फर्मर बनता है वो चेयर की शक्ल का होता है। चेयर की शक्ल कैसे होता है, जस्ट लाइक दैट, एच शेप, जस्ट लाइक दैट, ये चेयर कन्फर्मेशन कहलाएगी, ठीक है। तो चेयर कन्फर्मेशन के लिए रिजेम्बलेंस रखता होगा चेयर लाइक दैट, चेयर लाइक। तो अगर आप देखो तो ये कार्बन, ये कार्बन, 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 तो 6 कार्बन है और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और दोनों कार्बन के ऊपर जो अटैच ग्रुप्स हैं या अटैच एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, उनकी जो स्पेस में ओरिएंटेशन है वो जो है इस कन्फर्मर को बनाने में हेल्पफुल होती है ओरिजिनली, ठीक है। ओरिजिनली 2D शेप के अंदर ये 2D शेप के अंदर इस तरह से दिखता है, और इसका 2D 2D टू अगर इसकी 2D एक्सपेंड फॉर्म में देखोगे तो देयर हाइड्रोजन विल बी एट अ डिफरेंट ओरिएंटेशन इन 3D स्पेस, ठीक है। 2D टू 3D शेप के अंदर देखें तो अगर आप देखो 2D तो नहीं कहेंगे इसको, चलो 3D कहते हैं इसको, फिर समझ में आ जाएगा। So the hydrogen which is present on the same carbon, they all both the hydrogen have different stereochemistry। एक हाइड्रोजन आपके पास इक्वेटर के ऊपर है, एक आपके पास इस वाले हाइड्रोजन को कहते हैं एक्सियल, ठीक है। जस्ट लाइक फ्लैग पोल, आपने झंडे को देखा होगा, तो जस्ट लाइक दैट ये एच है फ्लैग पोल की तरह कहलाता है, और ये आपके पास इक्वेटोरियल इक्वेटर के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। तो हर कार्बन के ऊपर मौजूद हाइड्रोजन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो इक्वेटोरियल होगी और एक्सियल होगी, ठीक है। इफ द हाइड्रोजन एटम्स they are on the same the hydrogen on the same side axial पे ही होंगे, तो they will try to push the molecule and resulting into generating the stable conformer in terms of chair form, in terms of board form। और आप देखो तो इसके जितने भी हाइड्रोजन है वो डिफरेंट ओरिएंटेशन के अंदर है, हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन जो है इक्वेटर पे और दूसरा एक्सियल के ऊपर है। यही सारे हाइड्रोजन के ऊपर सही कार्बन सारे कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो सब के सब ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन इक्वेटर है, एक आपके पास एक्सियल है, ठीक है। तो अगर आप देखो इसके 3D शेप कुछ इस तरह से बनता है।
तो 3D इसका एक्सिस मीन्स मतलब ये इक्वेटर के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस मतलब ये वर्टिकल, ये वर्टिकल है। ठीक है, इस तरीके से इसी का बोर्ड कंफर्मेशन देखो, तो अगर आप देखो तो बोर्ड कंफर्मेशन के अंदर आपके पास क्या है, दिस बोर्ड कंफर्मेशन एक और इसी साइक्लोहेक्सेन का बनाया बोर्ड कंफर्मेशन बनती है, दो कंफर्मेशन बनती है इसकी, एक आपके पास स्टीयर कंफर्मेशन कहते हैं इसी साइक्लोहेक्सेन को, एक हम आप कहते हैं बोर्ड कंफर्मेशन। ठीक है, अगर आप इसके अंदर देखो तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन क्या है, दे आर ऑन इक्वेटर, दे आर ऑन वर्टिकली फ्लैग पोल है। ठीक है, एक्सियल भी कैसे हम कहते हैं। ठीक है, तो दे द हाइड्रोजन्स which is present on the carbon atoms, they are trying to push each other. In the case of both conformer, the hydrogens, this hydrogen and this hydrogen, they will try to push each other. Okay, and this will push each other, resulting into pushing of the interconnected hydrogen atoms on in the structure of cyclohexane. They will try to flip the molecule, as a result of which this board may be converted just like that. इसको हम कहते हैं शेयर लाइन। ठीक है, तो बोर्ड लाइन कुछ इस तरह से बनती है, इसको हम बोर्ड कहते हैं। ठीक है, देयर हाइड्रोजन, they will try to push each other, resulting into converting from board to the chair conformer. So their hydrogen far away, far away from each other, resulting into the stable conformer generation. So what you need to do? You have to see that which conformer is the most stable conformer when you are comparing the cyclohexane in terms of both conformer shape and in terms of chair conformer shape. Okay, यही इसका आपके पास इस तरह से बनाया गया है कि ये स्टेरिक स्ट्रेन आपके पास रिंग के अंदर और उसको पुश कर रहा है दूसरे को, जिसके नतीजे में आपके पास ये फ्लिप कर रहा है ऑन इट्स एक्सेस, resulting into converting the board shape into the chair shape. So that's all from the conformational chemistry or conformational isomers. You have to uh, uh, solve the problems which I have attached in the uh, previous lecture. And if we summate or conclude the stereochemistry, we will see that we have been discussed the different types of isomers, stereoisomers, configuration isomers, conformational isomers. So first, if you take that, do the compounds in the structure of a molecule, if the structure of the molecule or the compound they have same molecular formula, yes, then they are isomers. If they do not have same molecular formula, they are considered as a non-isomers. If the isomers they have same connectivity of atoms, they are stereoisomers. If they do not have same connectivity atoms, they are known as constitutional isomers. Okay, constitutional के अंदर आपके पास जो कनेक्टिविटी एटम होगी वो डिफरेंट होगी। ओके, while stereoisomers, if the compound can the compounds interconvert by rotating about a single bond. If they are interconverted about the rotation on the axis, if yes, then they are conformational. If no, then they are configurational. In configuration and in conformational, we discuss the enantiomers, diastereomers, uh, mesomers. We discuss the activity of the enantiomers, diastereomers, or mesomers with respect to the eutomers, distromers, and the eudismic ratios. We also covered the conformational isomers. We discussed the different nomenclature of the stereochemistry, including RS system, DL system, and the ENZ system.
We also discussed the representation of the stereo structures of the drug or the different molecules with reference to the carbohydrate as a reference molecule, with reference to the alanine and serine as a reference molecule, or we discussed with respect to the 2D to 3D presentation in terms of Fisher projection, Sawhurst projection, and the Newman projection. So the one thing is remaining in this chapter, which is the molecules or the drug examples of drugs or different drugs which are stereoselective or the stereo drugs. We will discuss in the next lecture with respect to the stereoisomers or the isomeric form of the drug, or R form of the drug, or the S form of the drug, or E or Z form of the drug. We discuss with respect to the activity, pharmacological response. So that's all from this lecture. Uh, Thank you. Allah Hafiz.